Assalamu alaikum dear all students. This is your teacher Miss Tahniat and I hope you all will be fine and safe at your homes. Students, as you all know, we are in the month of September, and in the month of September we have a unit number 4 which is PowerPoint Advanced Features. In this unit we will learn about the advanced features of the PowerPoint. We are going to learn in this unit about creating a new presentation. In the creating a new presentation we have a subtopics like blank presentation, design templates, auto content wizard, and the next one adding bullets and numbering PowerPoint views. In this PowerPoint views we will learn about normal view, outline view, slide sorter view, slideshow view, notes pages view, and the next applying a color scheme. We will learn applying a color scheme next, in which changing a color in the color scheme. Now next animating text and objects using music and sounds, applying transitions, specifying slide timings, creating a custom slideshow, header and footer, printing a slideshow in which the page setup and the print setup. In this unit we will learn about the advanced features like how can we change a color, how can we change a header and footer, how could we apply the animation text and objects like transitions, slide timings, slideshows, header and footer, and page setup or printing setup overall. We will learn about in this chapter. So I am going to start reading this chapter. In the previous class you made your first presentation using MS PowerPoint. We had made simple slides using title and blank slides of auto layouts. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो है वो फर्स्ट प्रेजेंटेशन बनाना शुरू की थी, और हमने वो कहाँ बनाई थी? MS पावरपॉइंट पे, जिसमें हमने सिंपल स्लाइड्स यूज़ की थी, टाइटल एंड ब्लैंक स्लाइड्स ऑफ लेआउट्स. हमने काफ़ी काम जो है वो सिंपल किया था. You have also learned to use some of the advanced tools to make your presentation attractive. और उसमें हमने कुछ advanced tools के बारे में भी पढ़ा था कि हम अपनी presentation को किस तरीके से attractive बना सकते हैं. But in this unit you will learn some advanced features of PowerPoint. लेकिन इस unit में आप लोग PowerPoint के कुछ advanced features के बारे में पढ़ेंगे. PowerPoint is a presentation software that helps us to present information in an effective and organized way. PowerPoint एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा वे है जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो और इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग PowerPoint. Now 4.1 creating a new presentation. In this we will learn about how could we create a new presentation on PowerPoint by using advanced features. When you start PowerPoint program, जब आप PowerPoint program start करेंगे, एक dialog box appears displaying the following options. जैसे ही आप लोग PowerPoint start करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से display आएगा. Click to add title, click to add subtitle, like, and all the options here you all can see in this picture. Here is a blank presentation. In this picture, blank presentation, use this option to create a presentation completely. आप लोग जो है ये ऑप्शन यूज़ करेंगे ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो completely create कर सकें. By default PowerPoint program shows this option as selected. और ये PowerPoint जो है वो selected के तौर पे ही पहले से select हुआ हुआ ही आपको दिखाएगा. We have used this option to create our slides. और हम ये यूज़ करेंगे अपने इस ऑप्शन को हम अपनी एक न्यू स्लाइड को क्रिएट करने के लिए. Like you can see in this picture, when we opened a PowerPoint in which the new presentation option has appeared. In the new presentation
Number 1 option is blank presentation, from design templates, from auto content, from existing presentation, and so on. We will choose blank presentation in which it shows all the layouts, like कि आप लोग इनमें से किस लेआउट पर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाना पसंद करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट इसमें है टेक्स्ट लेआउट, वो हमारे पास ऑलरेडी इधर यहाँ पर इस पिक्चर में जो है सेलेक्टेड था। अब आप लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अपना लेआउट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्म पर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। नाउ ऑन पेज नंबर 45, डिज़ाइन टेम्पलेट। इन द डिज़ाइन टेम्पलेट यू विल select a design of your presentation. Design templates are predefined files that contains styles in presentation. Like आप लोग अपनी यहाँ पर अपनी presentation का स्टाइल जो है वो किसी भी के आपको किस तरीके के स्टाइल पर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इंक्लूड द टाइप एंड साइज ऑफ बुलेट्स एंड फॉन्ट्स। यहाँ पर जो है वो टाइप और साइज़ ऑफ बुलेट्स और फॉन्ट्स जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर साइजेस एंड पोजीशंस, बैकग्राउंड डिज़ाइन, इसमें जो आप लोग क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड डिज़ाइन एंड फिल कलर स्कीम एंड अ स्लाइड मास्टर एंड ऑप्शनल टाइटल मास्टर। ये सारे आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं। इस ऑप्शन में जाके आप लोग अपने तमाम प्रेजेंटेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका फॉन्ट कितना रखना है, उसका बैकग्राउंड कैसा रखना है, उसका साइज़, उसकी टाइप, किस टाइप की आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, उसका कलर, उसका डिज़ाइन, वो यहाँ पर आप लोग जाकर सब यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अप्लाइंग डिज़ाइन टेम्पलेट्स। टू अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट्स टू योर स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप लोग कौन कौन से स्टेप्स इधर फॉलो करेंगे। क्लिक द डिज़ाइन बटन प्रेजेंट ऑन फॉर्मेट टूल बार। आपके पास जो है वो एक तरीके का डिज़ाइन के नाम से जो है वो एक ऑप्शन जो है वो शो होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन, इस पर क्लिक करके आप लोग अपना डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे ही इसको खोलेंगे तो आपके पास एक डिज़ाइन टेम्पलेट्स का यू सी डिफरेंट डिज़ाइन टेम्पलेट्स ऑन द टास्क पैन। यू कैन सी हियर डिज़ाइन टेम्पलेट्स। चूज़ द डिज़ाइन टेम्पलेट फ्रॉम द टास्क पैन, अप्लाई इट टू योर स्लाइड। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो अपना डिज़ाइन टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन पर शो करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, जो आपने सेलेक्ट की भी होगी ना स्लाइड, उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। नाउ कम ऑन पेज नंबर 46। There are various options to insert designs template into a slide. These are follows। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए मौजूद होते हैं अपनी भी किसी भी टेम्पलेट, किसी भी स्लाइड के अंदर ये डिज़ाइन टेम्पलेट अप्लाई करने के लिए। These are follows, यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरीके से टू अप्लाई द डिज़ाइन टेम्पलेट टू ऑल ऑफ योर स्लाइड्स। अगर यही डिज़ाइन जो आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब डिज़ाइन टेम्पलेट्स आ रही हैं, पीछे आप लोगों के पास ब्लैंक थी, अब आपने यहाँ पर डिज़ाइन टेम्पलेट सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर तमाम स्लाइड्स पर जो है ये डिज़ाइंस लगाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्लिक द अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स ऑप्शन, क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स ऑप्शन पे। Like you can see here, when you have selected this slide, you have an option apply to all slides. You can see here apply to all slides। अगर आपको जो है तमाम अपनी स्लाइड्स पर ये डिज़ाइन अप्लाई करना है तो आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स करेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक स्लाइड पे और अपनी सेलेक्टेड स्लाइड पर ये डिज़ाइन अप्लाई करना है तो आप क्लिक करेंगे अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। इस तरीके से ये आपका जो डिज़ाइन है वो अब आपकी डिज़ाइड स्लाइड पर, या अगर आपने अपनी एक स्पेसिफिक स्लाइड सेलेक्ट की हुई होगी या आपको तमाम स्लाइड्स पर जो है ये डिज़ाइन अप्लाई करना होगा तो उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। टू अप्लाई द स्कीम टू सेलेक्टेड स्लाइड्स क्लिक द एरो। और इसी स्कीम को जो है सेलेक्टेड स्लाइड्स पर लगाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा एरो आपको किस पे, ऑन द कलर स्कीम एंड देन क्लिक ओके। फिर आपको कलर स्कीम पर जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा और देन यू विल क्लिक दी ओके।
देन क्लिक द अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स ऑप्शन। फिर आप इस तरीके से अगर आपको अपनी सेलेक्टेड स्लाइड पर जो है वो इसको अप्लाई करना है तो आप सेलेक्टेड स्लाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। टू अप्लाई अ टेम्पलेट टू मल्टीपल सेलेक्टेड स्लाइड्स, और अगर यही आपको टेम्पलेट जो है वो काफ़ी सारी मल्टीपल सेलेक्टेड स्लाइड्स पर लगाना है, सेलेक्ट द थंबनेल। देन यू विल सेलेक्ट अ थंबनेल ऑन द स्लाइड टैब एंड इन द टास्क पैन क्लिक द टेम्पलेट्स। पे आप किस पे सेलेक्ट करेंगे? थंबनेल्स पर, स्लाइड टैब के। Now I am moving towards auto content wizard. This options prompts you to answer some questions. ये ऑप्शन जो है आपको कुछ क्वेश्चंस के जो आपके माइंड में आ रहे होते हैं उसका आंसर करता है। लाइक द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे कि आप अगर सोच रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन किस टाइप की होनी चाहिए, आउटपुट एक्सेट्रा, जैसे कि आपका आउटपुट किस तरीके का होना चाहिए, ये सब आपको इन सब के सवालों के जवाब आपको ऑटो कंटेंट विज़ार्ड देता है। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस, आपकी चॉइसेस के मुताबिक इट क्रिएट्स अ प्रेजेंटेशन फॉर्मेट फॉर यू। ये आपकी चॉइस के मुताबिक जो है वो आपको एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट प्रोवाइड करता है एंड और उसी के लिहाज के सजेशंस भी जो है वो आपको अबाउट योर कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन के मुताबिक उसी के सजेशंस और अपने आइडियाज़ भी देता है। यू कैन ऐड द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सजेशन, और ये कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं सजेशन के मुताबिक एंड योर प्रेजेंटेशन इज़ रेडी, और इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो होती है वो रेडी हो जाती है। नाउ वी विल यूज़ ऑटो कंटेंट विज़ार्ड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, और अब हम यूज़ करेंगे ऑटो कंटेंट विज़ार्ड अपनी एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हियर यू कैन सी क्लिक फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट न्यू। व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू you will see new. The new presentation dialog box appear. Here you can see कि आपने जब न्यू पे सेलेक्ट किया, फाइल पे ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपके पास एक न्यू आया न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपेयर हुआ है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। सेलेक्ट फ्रॉम ऑटो कंटेंट विज़ार्ड एंड क्लिक ओके। जब आपने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया है तो आपके पास एक न्यू प्रेजेंटेशन का जो है वो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपेयर हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है फ्रॉम ऑटो कंटेंट विज़ार्ड। यू कैन सी हियर फ्रॉम ऑटो कंटेंट विज़ार्ड एंड देन यू विल क्लिक ओके। When you will click on OK, the auto content wizard dialog box appear। एक हमारे पास न्यू ऑटो कंटेंट विज़ार्ड का डायलॉग बॉक्स जो होगा वो अपेयर होगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला ऑटो कंटेंट विज़ार्ड का एक डायलॉग बॉक्स है। रीड द कंटेंट्स एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन। देन यू हैव टू रीड दीज कंटेंट्स विच आर showing here, then you will click on next. The autocorrect wizard gets you started by providing ideas and organization for your presentation। इसमें क्या कह रहा है कि ऑटो कंटेंट जो है वो आपको जब आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो अपने आइडियाज़ और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। When you clicked on OK next, then a new title box will appear which will auto content wizard generic। The next window prompt you to choose the presentation style from the options available। आपको यहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन स्टाइल के लिए जो है आपका एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपेयर होगा यहाँ पे। When you will click next, you can however choose any type of presentation from the listed categories। और यहाँ पे जब आप नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिस्टेड कैटेगरीज का जो है वो एक टूल बार जो है वो शो होगा, जिसमें से आप लोग जेनरिक सेलेक्ट करेंगे, जेनरिक करके नेक्स्ट करेंगे। जब जेनरिक करके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक ये जेनरिक का जो है वो टूल बार जो है टाइटल बार शो होगा। द नेक्स्ट विंडो प्रॉम्प्ट यू टू चूज़ द प्रेजेंटेशन स्टाइल फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल, चूज़ ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन एंड क्लिक नेक्स्ट। ये जो जेनरिक का आपके पास एक न्यू टाइटल बार शो हुआ है, आप लोग यहाँ पे ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। इन द न्यू डायलॉग्स बॉक्स टाइप द प्रेजेंटेशन टाइटल फूटर एंड क्लिक नेक्स्ट। अब इस न्यू टाइटल डायलॉग्स बॉक्स में जो आप लोग अपना प्रेजेंटेशन टाइप करेंगे कि आपको किस तरीके की प्रेजेंटेशन चाहिए,
you have a need of a general presentation. You will select a general presentation, then you will select title, footer and click next. Footer and you will select a footer and the title of your presentation like footer GABA, then you will click on next. In the next window auto content wizard, अब हमारे पास नेक्स्ट विंडो में ऑटो कंटेंट में क्या डिस्प्ले होगा, डिस्प्लेज अ मैसेज दैट इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ स्लाइड। और इसमें हमारे पास जो है एक पूरे इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी एक हमारी न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए। क्लिक फिनिश टू व्यू द प्रेजेंटेशन, और इस तरीके से आप जो है लास्ट में क्लिक करेंगे फिनिश पर, इस तरीके से आपकी एक पूरा प्रेजेंटेशन का व्यू आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस टूल बार में आपने अपनी तमाम सेलेक्ट चीज़ें जो है वो सिलेक्टेड अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर ली होती हैं। फिर उसके बाद आप फिनिश पर जो है वो क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट योर presentation. So students, the time of the today's session has been ended here, and I will explain you the remaining topics in the next session. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.